today we'll be doing national health programs and policies. This topic we'll be doing today. So let's see what type of questions are being asked from this topic. So the first question, that is 169 number का जो question है, which of the following is a technology based surveillance system for tuberculosis in India or TB related web portal they are asking, ठीक है, which is the TB related web portal. So okay, they are giving the option as dots 99, निश्चय and निक्षय. ठीक है, निक्षय एंड निश्चय, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, निक्षय एंड निश्चय. ठीक है, ओके. सो लेट्स सी, if I talk about this dots is nothing but directly observed treatment short course. ठीक है, this falls under the RNTCP revised national TB program 1992. this is the treatment protocol of generally the TB. ठीक है, आगे मैं अगर आपको बताऊं, दिस निक्षय, क्षय रोग, इफ यू नो अ लिटिल बिट हिंदी देन यू मस्ट बी नोइंग दैट TB मीन्स क्षय रोग. सो यहाँ पे देखो, निक्षय इज अ software for TB notification. It is a software for TB notification which is technology based and surveillance system. So our answer will be निक्षय. All of you got this. Let's see about the other options. dots 99 जो बता रहा है यहाँ पे, एक dots था, एक dots 99. So dots 99 is generally a software for TB treatment compliance and surveillance. It is a software for TB treatment and compliance and surveillance. Next is Nischay. Nischay is nothing but free home based UPT, that is nothing but urinary pregnancy test kit provided free by the ASA workers. This is Nischay. So Nischay and Nikshay में आपको you have to be very clear about this. This is Nischay and for TB is Nikshay. Chhay rog means TB and Nikshay is for TB. So you must remember this. So you got the answer, that is Nikshay. अभी देखो, निकुष्ट करके भी एक पूछा जाएगा. सो निकुष्ट मीन्स, सो इफ यू आर नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी ऑल्सो देन यू मस्ट बी नोइंग दैट कुष्ठ रोग मीन्स नथिंग बट लेप्रेसी. सो दैट इज नथिंग बट निकुष्ट इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर लेप्रेसी पेशेंट. ठीक है, लेप्रेसी पेशेंट्स. चलो आगे देखते हैं. पर कैपिटा स्पेस फॉर ईच वर्कर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट. सो फॉर फैक्ट्री एक्ट देखो, बिफोर 1948, ठीक है, बिफोर 1948 जो फैक्ट्री एक्ट था उसमें क्या दिया गया है जनरली कि इफ द फैक्ट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बिफोर 1948 इट रिक्वायर्स 350 क्यूबिक फीट मिनिमम. ठीक है, पर कैपिटा स्पेस फॉर ईच वर्कर, यानी कि एक वर्कर के लिए कितना स्पेस चाहिए था. इफ द generally this factory has been established before 1948 it requires 350 cubic feet minimum, and after 1948 अगर फैक्ट्री 1948 के बाद आया है, so that is generally 500 cubic feet minimum वहाँ पे चाहिए. so यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, पर कैपिटा स्पेस फॉर ईच वर्कर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट. डायरेक्ट पूछा गया. देखो ऑप्शन में क्या क्या है, 100, 400, 300 और 500. सो जनरली ना 350 दिया हुआ है यहाँ पे, 300 और 400 दिया हुआ है. so 350 इज नॉट इन द ऑप्शन. सो विल take this question as if they are asking after 1948, that is 500 cubic feet. ठीक, चलो आगे देखते हैं. 666 strategy under anemia mukt bharat. Yes, this question has been repeated multiple times, that is 6x6x strategy. So if I talk about a little bit about anemia mukt bharat, so generally it is also called as intensified national iron plus initiative, यानी कि INIPI करके भी आपसे पूछा जा सकता है. so this is intensified national iron plus initiative. एम इसका क्या है जनरली, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम का, टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% पर ईयर बिटवीन 2018 टू 2022. दिस इज द एम ऑफ द एनीमिया मुक्त भारत. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी. अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं जनरली तो 6x6x की स्ट्रेटेजी है इसमें, एंड जनरली 6x6x यानी कि 3 6. So first 6 means generally 6 beneficiaries, the second 6 means 6 interventions, and the third 6 means generally 6 institutional mechanism. So this is generally the 6x6 category. ठीक है, 3 6 category. So यहाँ पे देखो अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे देखो बेनिफिशियरीज है ना, 6 बेनिफिशियरीज होंगे, 6 इंटरवेंशंस होंगे एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होंगे, बट कोऑर्डिनेशन और मिनिस्ट्री यहाँ पे नहीं होंगे. सो दिस इज आवर आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम. सो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, कौन कौन सी नहीं दी गई हैं. सो for that we just talked about the 6 beneficiaries, 6 interventions and 6 institutional mechanisms. So let us deal a little bit in wide about generally what 6 interventions. So interventions में क्या क्या आते हैं, 6 interventions हैं. तो फर्स्ट इंटरवेंशन है प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. द सेकेंड इज पेरियोडिक डीवर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन एडोलसेंट प्रेग्नेंट वुमन. थर्ड विल बी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन. नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑफ
anemia using digital method and point of care treatment. Next is mandatory provision of iron and folic acid fortified foods in public health programs, and the sixth one is addressing non nutritional causes of anemia also. So यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या पूछे गए हैं, फॉलिक एसिड है एंटी हेलमिंथिंग यानी कि डिवर्मिंग के लिए भी किया जाता है, आयरन तो है ही, नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, so एंटीबायोटिक्स इज डज नॉट फॉल्स अंडर द 6 इंटरवेंशंस ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखो all healthcare providers are working at village level except, so देखो this ANM, ठीक है, दिस ANM जनरली वर्क्स एट हेल्थ सब सेंटर्स। ठीक है, हेल्थ सब सेंटर, सो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट ANMs. ANMs work at health sub centers. The sub center is a small village level institution that provides primary health care to the community. The sub centers work under the primary health center, that is PHC, and health workers like ASA, AWW, trained DIs work at generally village level. ठीक है, they work at village level. So all healthcare providers are working, so the AWW भी वहीं पे काम करता है, आशा भी at the village level, and trained DIs are also at the generally village levels only. This ANM will work at health sub centers. Next देखो, which of the following is a home based pregnancy test kit provided by GOI? just ऊपर मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, that is nothing but निश्चय, under the program of निश्चय they provide generally urinary pregnancy test kit delivered to their home by the ASA workers. generally वो कौन करते हैं, ASA workers करते हैं. इफ यू आर, ये देखो निश्चय, दिस इज नथिंग फॉर बट फॉर टीबी. ठीक है, इफ यू आर पोस्टेड एज मेडिकल ऑफिसर इन एन एरिया अंडर NVBDCP, ठीक है, एंड यू विल बी एडवाइज टू स्प्रे मैलाथिन फॉर malaria prophylaxis, what could be the probable decision you will take regarding the frequency of malathion spray? ओके, सो देखो मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ आपको. सो सम टॉक्सिकेंट्स जनरली विच आर यूज्ड फॉर मस्क्यूटो किलिंग, जैसे कि DDT यूज करते हैं. सो डोजेज कितना होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज किया जाएगा, एंड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर दिस विल बी 6 to 12 मंथ्स. लिंडेन, देखो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, देखो इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा, आई विल टेल यू हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम हियर. लिंडेन, द डोजेज ऑफ लिंडेन इज 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड जनरली इट इज इफेक्टिव फॉर 3 मंथ. मैलाथिन की अगर मैं बात करूँ तो 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज होता है एंड जनरली इट इज इफेक्टिव फॉर 3 मंथ्स. OMS 33, that is dosage in gram meter square is 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड जनरली इट इज इफेक्टिव ऑल्सो फॉर 3 मंथ्स. सो यहाँ पे देखो इफेक्टिवनेस से ही क्वेश्चन कैसे आया है कि आपको पूछ रहे हैं कि मालाथीन जो है मलेरिया के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप स्प्रेड करोगे वहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कितनी रखोगे. सो फ्रीक्वेंसी इट इज इफेक्टिव फॉर हाउ मेनी मंथ्स, इट इज इफेक्टिव फॉर ओनली 3 मंथ्स. सो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स यू हैव टू रिपीट, सो दैट्स व्हाई वंस एवरी 3 months. You got it how the question has been framed from here. Next देखो, a country is developing an outbreak of a notifiable disease. Notifiable disease I have already told you in previous lectures. ठीक है, what is the probable time within which one should report it to WHO? अगर notifiable disease आ रहा है so generally you have to report it to WHO. चाइना की तरह यह नहीं कि छुपा लेना है. चाइना ने क्या किया था, जनरली चाइना डिड व्हाट इन वुहान दैट आउटब्रेक टुक प्लेस, चाइना न्यू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज वेर अफेक्टेड, बट स्टिल चाइना वाज टेलिंग नो नथिंग इज बीइंग, कोई भी कोई सा बड़ा बात है नहीं, एंड दे हैड नॉट रिपोर्टेड इट टू WHO एंड दे वर ट्राइंग टू हाइड अबाउट दिस. सो दिस इज नॉट प्रैक्टिसेबल. ठीक है, so generally which one you should report it to the WHO within 24 hours. You must report it to the WHO within 24 hours. This is generally for the state government. क्या करना है, सेंट्रल को देना है, और सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इट मस्ट रिपोर्ट इट टू WHO within 24 hours. चलो आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट देखो, वन आशा वर्कर इन रूरल एरियाज इज डेजिग्नेटेड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन के लिए वो आशा वर्कर. सो देखो अगर मैं हेल्थ पर्सनल्स में बात करूँ, हेल्थ असिस्टेंट दैट इज HA की, सो जनरली 1 पर 30,000, नर्स की बात करूँ तो 1 पर 5,000, एंड जनरली फार्मासिस्ट 1 for 10,000, लैब टेक्नीशियन 1 for 10,000, आशा 1 for 1,000, एंड ट्रेंड दाई और TBA जनरली 1 per 1,000, एंड विलेज हेल्थ गाइड जनरली 1 for 1,000 पॉपुलेशन इट शुड बी देयर. सो जनरली देखो आशा वर्कर के लिए पूछ रहा है, सो दिस इज जनरली 1,000. इसके रिलेटेड एक हेल्थ केयर लेवल वाला पूरा का पूरा चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ. सो जनरली इफ वी टॉक अबाउट द हेल्थ केयर लेवल्स, ये देखो ये आपको जनरली याद कर लेना है, छोटा सा है कि दिस वाज इन द सेरेबेलम का, उसमें जनरली जो रैपिड डिवीजन वाला नोट है उसमें आपको मिल जाएगा ये, एंड दिस इज वेरी हैंडी. ठीक है, सो यहाँ देखो PHC जो प्राइमरी है जनरली टाइप ए में कितनी होती है, टाइप ए किसको बोलते हैं, वेयर देयर इज लेस देन 20 डिलीवरीज पर मंथ. टाइप बी, वेयर देयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 डिलीवरीज पर मंथ. यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ, सो दैट व्हेन वी गो टू द क्वेश्चन वी डू इट इजीली. आगे देखो, सब सेंटर प्राइमरी में जनरली क्या होगा, टाइप ए डिलीवरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, एंड टाइप बी उसको बोलते हैं जहाँ डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल होता है. नेक्स्ट देखो, ग्रास रूट
लेवल वर्कर्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर मैं आशा की बात करूँ तो इट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ASHA का फुल फॉर्म ये है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्टिविस्ट। इसमें कितनी ईयर की फीमेल्स होती है? 25 to 45 ईयर की फीमेल। लोकेशन इन द विलेज, ब्रिज बिटवीन ANM एंड सब सेंटर, सी इज द ब्रिज बिटवीन ANM एंड सब सेंटर। पी पॉपुलेशन नॉर्मल मतलब कि 2/1000 जनरली, 2/1000 जनरली, बट 1 इज फॉलोड, 2/1000 इज नॉट फॉलोड जनरली, 1/1000 इज फॉलोड। यहाँ देखो एजुकेशन 10th पास और ट्रेनिंग AWW प्लस ANM दैट इज 23 days at PHC they have to do the training. Next देखो MPW that is nothing but multi-purpose worker. Multi-purpose worker they are located on sub centers. P norm is generally population norm is generally 1/5000 and education is 12th pass, training is 12 months. VHG that is village health guide, location is village, P norm is 1/1000 and generally education 6th pass and training 3 months. आगे देखो TBA दैट इज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिसको हम ट्रेंड दाई भी बोलते हैं। सो दिस इज जनरली 1/1000 इज रिक्वायर्ड। लोकेशन इज जनरली एट द विलेज एंड एजुकेशन इसके लिए उसके वैसा कुछ चाहिए नहीं, ट्रेनिंग ऑफ 1 month इज इनफ फॉर देम। AWW दैट इज आंगनवाड़ी वर्कर अंडर ICDS, दैट इज लोकेशन AW सेंटर दैट इज आंगनवाड़ी सेंटर। पॉपुलेशन कितने में? 1/400 to 800 पॉपुलेशन। एजुकेशन मिनी चाहिए 10th पास के लिए, है ना। 8th पास भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो दैट विल आल्सो बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। 8th में भी आप लगा सकते हो, 8th पास भी आपको मिलेगा वहाँ पे। ट्रेनिंग विल बी फॉर 4 months। आयुष में जनरली आयुर्वेदा इंडियन ओरिजिन, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? समटाइम्स दे कैन आस्क दिस। सो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी एंड यस फॉर सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज इंडियन ओरिजिन। ये जो यूनानी है ग्रीक ओरिजिन है, योगा जो है वो इंडियन ओरिजिन है एंड आयुर्वेदा इज ऑल्सो इंडियन ओरिजिन। एंड H फॉर होम्योपैथी विच इज जर्मन ओरिजिन। और जनरली फादर ऑफ होम्योपैथी किसको बोलते हैं? सैमुअल हैनमैन को, ठीक है, सैमुअल हैनमैन। स्टेट मेडिसिन जनरली फ्री मेडिकल केयर बाय अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। सोशलाइज्ड मेडिसिन इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय रशिया इन 1978 where free medical care by regulated care by regulated by professional groups or bodies. India जनरली फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किसने लाया था? इंडिया ने। एंड ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी इंडिया ने, और फिंगर प्रिंटिंग का भी जनरली इंडिया ने लेके आया था। यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फैक्ट्स है कुछ। ये देखो अंडर ESI आफ्टर सर्टिफिकेशन बाय मेडिकल ऑफिसर बेनिफिशियरीज गेट 70% वेजेस फॉर 3 months अंडर। देखो ESI यानी कि इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, इसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है, जो यू जस्ट रिमेंबर दिस मच, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। If I talk about the medical benefit, there will be full medical care, ठीक है। दिस इंश्योरेंस कवर्स द फुल मेडिकल केयर। सिकनेस बेनिफिट की मैं बात करूँ तो 70% ऑफ द एवरेज डेली वेजेज एंड इज पेएबल फॉर 91 days इन 1 year। एक ईयर में आप अगर सिकनेस बेनिफिट की बात करो तो जनरली 70% ऑफ द एवरेज डेली वेज मिलेगा आपको एंड दैट विल बी पेएबल फॉर ओनली 91 days, उससे ज़्यादा का आप नहीं ले सकते हो। टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट अगर की मैं बात करूँ so generally there will be 90% of average daily wages till the recovery। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट की मैं बात करूँ तो 90% ऑफ वेजेज फॉर लॉस ऑफ अर्निंग एज वर्कड आउट बाय अ मेडिकल बोर्ड। इसमें मेडिकल बोर्ड की जनरली आपको क्या चाहिए? एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो वहाँ से वेरीफाई करे कि यस दे हैव परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डेड द इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। और इसमें जनरली क्या है? 70% ऑफ वेजेज फॉर 3 months, वही 91 days वाला, 33 जा 91 के 91। सो दैट इज जनरली कम्स अंडर सिकनेस बेनिफिट, ठीक है, सिकनेस बेनिफिट। आगे देखो कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन NPCDCS। NPCDCS में जनरली क्या आता है? देखो NPCDCS है क्या? NPCDCS is National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke. It has two components, one is cancer and next is diabetes, CVD and stroke. Two components होते हैं इसमें से। यहाँ पे देखो which of the following are included in NPCDCS, that is CVD, cardiovascular disease, cancer, diabetes and stroke। देखो यहाँ पे bronchial asthma that is not here, bronchial asthma is not there, hypertension भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है, hypertension नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा भी नहीं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हाइपरटेंशन आ भी सकता है बट जनरली यहाँ पे क्या दिया गया है? एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एक हाइपरटेंशन। सो और वहाँ पे फर्स्ट में क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा। सो ब्रोंकियल अस्थमा तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्बन मलेरिया स्कीम। अर्बन मलेरिया स्कीम जनरली इट इंक्लूड्स एरिया विथ स्लाइड पॉजिटिविटी ऑफ ग्रेटर देन 10 cases पर 10,000 स्मीयर। सो दिस इज नॉट करेक्ट। देखो करेक्ट क्या है? अर्बन मलेरिया स्कीम में इट कंप्राइजेज वेक्टर कंट्रोल बाय इंटेंसिव एंटी लार्वल मेजर। It includes all urban areas with greater than 50,000 population. This is true. Areas with annual parasite index of 2 are included. So generally आपको ये 3 पॉइंट है, अगर यहाँ से आप याद कर लो तो that will be far more than enough for your urban malaria scheme के बारे में जितना आपको पढ़ना है।
ब्लड स्मीयर फॉर मलेरिया इज कलेक्टेड बाय, ब्लड स्मीयर कौन करता है कलेक्ट, दैट इज डन बाय मेल एमपीडब्ल्यू, दैट इज मेल मल्टीपर्पस वर्कर्स। देखो मेल मल्टीपर्पस वर्कर क्या क्या काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इनके, बट जनरली दोज वर्क्स विच आर जनरली आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, सो दैट इज malaria surveillance activities, to collect blood smear from severe cases, from fever cases, identify cases of Japanese encephalitis, filariasis and Kala-Azar in the community, identify and supervise TB patient for proper treatment, and identify suspects of leprosy, blindness and cataract। अगर इतना आप याद रखो तो you will be good to go it any questions being asked from this topic। ठीक है, आगे चलो। स्प्यूटम फॉर AFB इज कलेक्टेड एट विलेज लेवल बाय, स्प्यूटम फॉर AFB, सो दैट इज नथिंग बट हेल्थ वर्कर मेल। ठीक है, हेल्थ वर्कर मेल। आगे देखो, सुरक्षा क्लिनिक इज फॉर, सुरक्षा क्लिनिक इज जनरली फॉर, सुरक्षा क्लिनिक की मैंने लोगों आपको जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक में, सुरक्षा क्लिनिक इज जनरली फॉर RTI और STD, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आगे देखो, उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम इज फॉर, उज्ज्वला स्कीम जनरली फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की कौन कौन सी चीज़ें को जनरली उज्ज्वला स्कीम कवर करती है, इट विल कवर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू इफ द चाइल्ड हैज बीन ट्रैफिक्ड, एंड री इंटीग्रेशन, रिहेबिलिटेशन एंड repatriation, these things will be generally coming under the Ujjwala scheme। Next देखो, under Vision 2020 in a school आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम और टीचर चेक्स विजन ऑफ ए स्टूडेंट विल रिफर टू हिच सेंटर। ठीक है, टीचर जनरली करते हैं 50 तो 50 to 100 बच्चों को एक टीचर करता है चेक, एंड जनरली उसके बाद उसको कहाँ पे रिफर करना है, सो ही विल बी रिफर टू जनरली नाउ सर्विस सेंटर। कैसे देखो, SBSP दैट इज स्कूल विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम। ठीक है, डन बाय क्लास टीचर फॉर वन क्लास टीचर ऑन 150 स्टूडेंट्स। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स के लिए। विजुअल एक्यूटी इज लेस देन 6/9, रिफर टू PMOA दैट इज PHC, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर। ठीक है, सर्विस सेंटर। विजन सेंटर्स क्रिएटेड एट प्राइमरी लेवल, PHC टू बी मेंटेन्ड बाय PMOA, वो ही मेंटेन करता है जनरली। सो जनरली हमको पढ़ाना कहाँ है, सर्विस सेंटर में। ठीक है, सर्विस सेंटर देखो यहाँ पे सर्विस सेंटर, या फिर ये दो ये PMOA और या फिर PHC भी रहता है वहाँ पे, तो यू कैन हैव डन दैट। HIV सेंटिनल सर्विलेंस इज नॉट डन इन व्हिच पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन फॉर जो सेंटिनल सर्वेलेंस है उसमें फीमेल सेक्स वर्कर आते हैं, जो हाई ग्रुप्स हैं जनरली, फीमेल सेक्स वर्कर है ना, IV ड्रग अब्यूजर्स, ट्रांसजेंडर्स, माइग्रेंट लेबरर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स, दे विल जनरली कम। एंड दिस ट्रक ड्राइवर वाला क्वेश्चन तो आपको सिफिलिस के लिए कितने बार ट्रक ड्राइवर दे के पूछेगा, यू ऑल्सो नो अबाउट दिस। सो यहाँ पे देखो, HIV सेंटिनल सर्विलेंस नॉट डन इन हुच पॉपुलेशन, इट इज नॉट डन फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर के लिए किया जाता है, माइग्रेंट लेबर के लिए किया जाता है, एंड ट्रक ड्राइवर, बिकॉज दे आर एट द मेन हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप which can have these STDs। ठीक है, which of the following is not emphasized in school health services, school health services में which of the following is not emphasized। so देखो, school health services में 4-5 चीज़ें आपको याद करनी है, malnutrition, infection disease, intestinal parasites, disease of skin, eye and ear and dental caries, इतनी चीज़ों को जनरली स्कूल हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। so यहाँ पे देखो, डेंटल केरीज हैं, इन्फेक्शियस डिजीज हैं, malnutrition है, लंग इन्फेक्शन, नो दिस हैज नॉट बीन एम्फेसाइज्ड इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। वेरी इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखो, which of the following is not the work responsibility of ASA, ASA का काम क्या नहीं। ओके, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ASA। ठीक है, मैंने कुछ आपको पहले बताया था वहाँ पे हेल्थ वर्कर वाले में, बट नाउ ASA से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट ASA। ASA का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, हेल्थ एक्टिविस्ट इन द कम्युनिटी हु क्रिएट्स जनरली, आशा का फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो दिस इज नथिंग बट, वो काम क्या है, सो इट आशा इज ए हेल्थ एक्टिविस्ट जनरली in the community who creates awareness on health। next देखो, responsibilities of ASA, create awareness and information, nutrition, basic sanitation, hygienic practices। next देखो, counsel women for safe delivery, breastfeeding, immunization, contraception and prevention of infectious disease including STIs, facilitate services available at Anganwadi sub center, PHC, escort accompany pregnant women and children requiring treatment, admission to nearest health centers, act as depot holders for ORS powder, iron, folic acid tablet, OCPs and condom। ये भी याद रखना, ये condom वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। Provide primary medical care for minor ailments like diarrhea, fever and first aid for minor injury। Also provide dots under RNTCP to inform about the birth and death in our village or any unusual health problems outbreaks in the community। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। To promote construction of household toilets under toilet sanitation, total sanitation
campaign, total sanitation campaign. So यहाँ पे देखो, which of the following is not the work responsibility, that is delivery at home. ASHA is not trained to do the deliveries at home. Next देखो, true about incentives given to ASHA worker in जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना में कितने की जनरली पैकेज मिलती है. So let us see. The scale of assistance under the scheme from the Bharat therefore encouraging safe delivery at health institution is as follows. देखो कैटेगरी, मदर्स पैकेज 1400, एलपीएस और एचपीएस, एलपीएस यानी कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स और एचपीएस यानी कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स. हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में 700 मदर्स पैकेज एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट में 1400 है. आशा का पैकेज इसमें कितना होता है, 600, और यहाँ पर भी 600 होता है. टोटल कितना हो गया देखो 2000, और यहाँ पे 1300 का टोटल पैकेज आता है. सो आशा इज गेटिंग इक्वल इन बोथ द लो परफॉर्मिंग स्टेट्स वेराज हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स. अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो मदर्स पैकेज 1000 की, और जनरली आशाज पैकेज विल बी ऑफ 400. सो यहाँ पे आशा इज गेटिंग लेस. एंड इन द एचपीएस दैट इज हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, मदर्स पैकेज विल बी ऑफ 600 एंड आशाज पैकेज ऑफ विल बी ऑफ 400 एंड टोटल विल बी 1400 और 1000 रेस्पेक्टिवली. आशा इंसेंटिव ऑफ आरएस 6 से इन रूरल एरियाज इंक्लूड्स 300 फॉर एएनसी कंपोनेंट एंड 300 फॉर अकम्पेनिंग द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. आगे देखो, आशा इंसेंटिव ऑफ 400 इन अर्बन एरिया इंक्लूड्स 200 फॉर एएनसी कंपोनेंट एंड 200 फॉर अकम्पेनिंग द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. ऐसे इस हिसाब से. सो यहाँ पे देखो, आशा वर्कर इन जननी सुरक्षा योजना दैट इज नथिंग बट 400 INR टू आशा एंड 1000 INR टू मदर इन अर्बन एरिया लो परफॉर्मिंग स्टेट्स. ये देखो, ये सब आपको गलत मिलेंगे. एन IQ ऑफ 55 कम्स इन व्हिच कैटेगरी. सो IQ की बात अगर मैं करूँ, सो जनरली देखो, मेंटल स्टेटस अगर नॉर्मल IQ है तो जनरली दैट विल बी ग्रेटर देन 70%. IQ रेंज अगर ग्रेटर देन 70 है, सो दैट विल बी नॉर्मल IQ. इफ इट लाइज बिटवीन 50 to 70, इट इज अ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन. If it lies between 35 to 49, that is moderate mental retardation. If it is between 20 to 34, that is severe mental retardation. And less than 20 IQ है, so that is generally profound mental retardation. So यहाँ पे देखो, IQ of 55, so 55 comes under mild mental retardation. Second वाला 50 to 70 के बीच में आता है. One male health worker, one female health worker should be present at each PHC. This is given by which community? Which committee, not community. सो देखो, जंगल वाला कम्युनिटी ने क्या दिया था, 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन. ऑल दिस कमिटी यू विल डू इट हेयर ऑनली. यहाँ पे मैं सारे करवा दे रहा हूँ. सो सी, उसके बाद आपको देखना ही नहीं है. सो 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय जंगल वाला कमिटी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. नेक्स्ट इज बैन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड दिस हैज बीन द क्वेश्चन इन सो मेनी एग्जामिनेशन. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दिस ऑल्सो हैज बीन अ क्वेश्चन. ठीक है, चलो आगे मैं बताता हूँ. Bhor committee generally it suggested 1 PHC per 40,000 population and concept of social physician. So this has been a question in that generally the physicians they have to do 3-month internship in the PSM, that is social physician. Or concept of this social physicians was first recommended by Bhor committee. आगे देखो, करतार सिंह कम्युनिटी. सो देखो, करतार सिंह कम्युनिटी जनरली इट इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एट सब सेंटर इन इंडिया. और क्वेश्चन यही पूछा गया हमसे. सो आवर आंसर विल बी करतार सिंह कमिटी. आगे देखो, मुडालियार कमिटी. सो देखो, मुडालियार कमिटी में जनरली हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी. सो इसमें इतना याद कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कमिटी वाला क्वेश्चन. ऑल आर ट्रू, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जंगल वाला और भोर कमिटी से पूछा जाता है. ठीक है, जंगल वाला और भोर कमिटी से. ऑल आर ट्रू अबाउट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट, देखो, इन पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस, इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलता है जनरली, कंप्लीट नहीं मिलता है, बता रहा हूँ. ऑल आर ट्रू यानी कि जनरली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट इन पेशेंट मिलता है, आउट पेशेंट मिलता है, इमरजेंसी मिलता है एंड कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज नॉट अंडर जनरली द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. देखो, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में जनरली क्या मिलता है, देखो, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, नॉट कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस, प्री केयर एंड आफ्टर केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग फोस्टर होम प्लेसमेंट एंड होम विजिटिंग, एजुकेशन सर्विसेज आर देयर, ट्रेनिंग इज देयर, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन इज देयर. इफ आई talk some more questions from this topic, the like नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 1982 में. नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में है ना. एंड नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1999. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स. ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 की बात करूँ तो जनरली द मेन एम्स ऑफ दिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या था, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द हेल्थ. द नेक्स्ट वाज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ
लाइफ। नेक्स्ट वाज इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज इन मेंटल स्पेशलिटीज। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके जनरल दिस प्रोग्राम के? अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड टू प्रमोट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ। DMHP दैट इज डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1996 में क्या क्या था? देखो बेलरी मॉडल था ये जनरल, जिसमें अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, IEC एंड मॉनिटरिंग दैट इज रिपोर्ट राइटिंग वाज देयर। लेगिस्लेशन, द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, द MH केयर एक्ट 2011 में क्या बताया गया है कि जनरली MH डिसऑर्डर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेंटल हेल्थ केयर 2017 CRDOP यूनाइटेड नेशंस की कहती है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इलनेस और माइनस एम रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, गुड क्वालिटी MH केयर। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सो लेट अस स्किप दैट, ठीक है, ऊपर वाले से क्वेश्चन आएंगे। सो लेट्स सी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो स्टार्टेड इन 1951, नहीं देखो कब स्टार्ट हुआ था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम? 1982 में। सो यहाँ पे देखो 1987, 1999 है ना, 1990। सो यहाँ पे देखो द एग्जैक्ट आंसर इज नॉट गिवन है, ठीक है। सो वी मस्ट रिमेंबर कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1982 में। अगर ये नहीं है तो सबसे जो मेन यहाँ पे उसके बाद वाला बनेगा दैट इज 87, बट जनरली वो भी दो जगह यहाँ पे दे दिया है। सो लेट अस स्किप दिस क्वेश्चन। आगे देखो कैफेटेरिया अप्रोच इज रिलेटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो कैफेटेरिया अप्रोच इज जनरली रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। आगे देखो मैक्सिमम रिकमेंडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इन वन क्लासरूम दैट इज 40 से ज़्यादा नहीं रखना है। नॉट इंक्लूडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दैट इज कालाजार, कालाजार लिस्मेनियासिस इज नॉट इंक्लूडेड। देखो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985, अर्लियर नेम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन API 1978, UIP is a part of RCH program under National Health Mission, start at birth and complete at 16 years of age। बर्थ पे शुरू होगा जनरली, इट विल कंप्लीट एट जनरली 16 ईयर फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स एडिशनल TD ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज TT इन प्रेगनेंसी। देखो नेक्स्ट देखो एट बर्थ पे इतने लगेंगे, 6 वीक्स पे, ये मैंने आपको जनरली कहाँ पे बता चुका हूँ मैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इन द वैक्सीन वाला चैप्टर, ठीक है, वैक्सीन एंड कोल्ड चेन वाला चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो देखो नॉट इंक्लूडेड क्या है? कालाजार। इन नेशनल वेक्टर, ये वहाँ पे क्वेश्चन में ये एट बर्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे जनरली, ठीक है, BCG OPV एंड जनरली हेपेटाइटिस बी इज गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। आगे देखो इन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम व्हिच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड? मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर एंड कालाजार। सो देखो NVBDCP जनरली वेक्टर बॉर्न वाला में जनरली क्या है? मलेरिया है, मलेरिया, फाइलेरियासिस, कालाजार एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर देयर। सो क्या नहीं है? येलो फीवर नहीं है। So this much for this video. We have completed this topic also, and now in the next video I'll tell you about preventive obstetrics, pediatrics and geriatrics। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। So we are almost at half of this PSF। और अगर आप लोगों को जल्दी करना है ख़त्म एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोज क्या बोलते हैं उसको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी जाना है, देन यू मस्ट सपोर्ट मी अ लिटिल बिट, ठीक है, यू मस्ट हैव टू सपोर्ट मी। सो please share these videos with your friends, and if it is possible then I will try to do 2 videos in a day also, so that you can finish this early, ठीक है। This much for this video, thank you everyone।